Welcome back, students. Our next topic is migration. Now, what is migration? आप बहुत अपने previous classes से पढ़ते आते हो, almost from 5th 6th standard, right? It is migration. You all know about it. Now, what is migration? It is the process which an animal, you can say a bird, follows. It moves from one place to another once in a year due to climatic changes. Right, it is due to climatic changes, and they move from their natural habitat to other habitat because of climatic changes. That is because वो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर आ गया है उनके नेचुरल हैबिटेट में, दे कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर. सो फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर देयर ब्रीडिंग ऑल्सो, right, these birds fly away to very long distance for their, not only for their survival but also for their breeding purpose, that they lay eggs over there, right? So it is for their breeding also. It is an adaptation, you can say it is one type of adaptations of these birds, that they fly to long distance every year, right? You would have heard Siberian cranes, they visit India every year from Siberia. All the way to Siberia, they fly to India every year, and here they come in winters, right? When in Siberia, when there is winter, they visit India. Mainly, you would have heard about Bharatpur in Rajasthan, where this Siberian cranes visit. Then flamingos, you would have heard about Nal Sarovar also, right? So these birds, they fly from far away places every year during the particular time, right? And it is because of climatic changes. They visit over here, they breed over here, they lay eggs over here, and then they carry their baby along with them. Do you know which is the bird which goes longest migration? It is the Arctic tern. Arctic tern is the bird which follows the longest migration. It travels from the North Pole to the South Pole every year. It is the longest migration. It is the Arctic tern, right? So these birds, they are known as migratory birds, right? They are known as migratory birds. Okay. Now our next topic is recycling of paper. We all know that paper is made up from wood pulp, right? It is produced from wood of forest trees, and it is one of the very important product that we get from forest, right? And it is also the major cause of deforestation. इतने सारे जो trees कट रहे हैं, उसका major cause है paper production. आप सोचो पूरे दुनिया में हर रोज़ के कितने पेपर्स यूज़ होते होंगे, राइट? सो टू फुलफिल आवर नीड्स इतने ट्रीज़ भी हर रोज़ काट दिए जाते हैं. यू नो 17 फुल ट्रीज़ काटते हैं तब जाके 1 टन पेपर प्रोड्यूस होता है. 17 ट्रीज़ अगर हम काटते हैं तब जाके 1 टन पेपर प्रोड्यूस होता है. और हम पूरे वर्ल्ड का अगर सोचे तो हर रोज़ के कितने टन पेपर हम यूज़ करते थे होंगे, राइट? तो हर रोज़ का आप सोचो, एक फॉरेस्ट हम पूरे ट्रीज़ काट डाले तब जाके हमारा एक दिन का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है पेपर का. सो व्हाट वी शुड डू इज़ वी शुड एटलीस्ट सेव 1 पेपर अ डे. दिन का सिर्फ अगर एक पेपर सेव करते हैं तो हम कितने फॉरेस्ट सेव कर देंगे, राइट? सो देयर शुड बी सम स्टेप्स विच वी शुड फॉलो ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सके. एंड दो स्टेप्स आर, द फर्स्ट वेरी नेसेसरी इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. जो पेपर हमने यूज़ कर लिया है उसको रिसाइकल करके फिर से नया बनाओ. You know students, each paper you can recycle it 5 to 7 times. और हमें हमेशा recycled paper यूज़ करना चाहिए so that we can save trees.
वी कैन सेव फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट ऑफ, वी कैन सेव वाटर, पानी भी सेव कर सकते हैं, पेपर बनाने में बहुत पानी यूज़ होता है, राइट. वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेपर, right. We can even reduce the amount of use of chemicals, harmful chemicals also. So recycling of paper, it is a very necessary step to be followed so that we can preserve, we can conserve our forest, right. And the last topic of this chapter, इट इज़ रीफॉरेस्टेशन. आप सबने एफॉरेस्टेशन तो सुना था, दैट इज़ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. नाउ डू यू नो व्हाट इज़ रीफॉरेस्टेशन? रीफॉरेस्टेशन मतलब रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड ट्रीज़. जो ट्रीज़ को हमने रूट्स से नहीं काट डाला है, सिर्फ उनके ट्रंक्स तक काटा है, तो वो ट्रीज़ फिर से ग्रो हो सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन, मतलब रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट. ठीक है. अब हम उसको कई अलग अलग तरीके से रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. वन ऑफ द मेथड इज़ कि जो हमने फॉरेस्ट एरिया काट डाला है, जिसको रूट से नहीं काटा, मतलब सिर्फ ट्रंक्स से काटा है, तो उनको हम बिना कोई ह्यूमन एक्टिविटी के ऐसे ही रहने दे, अनडिस्टर्ब्ड अगर उस एरिया को रहने देते हैं, तो वहाँ पे वही ट्रीज़ फिर से ग्रो हो जाएंगे. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द वे हाउ वी कैन कंजर्व एंड सेव फॉरेस्ट. जो उनका पर्टिकुलर एरिया है, उसी एरिया उस ट्रीज़ को मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे नेचुरली ग्रो कर सकते हैं. दे कैन री एस्टैब्लिश इटसेल्फ. ठीक है. नेचुरली वो रिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हो सकता है, वेयर देयर शुड बी नो ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई ह्यूमन रोल नहीं होना चाहिए, राइट. एंड वी कैन रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ ऑल्सो. तो अगर हम ट्रीज़ काट रहे हैं हमारी नेसेसिटीज़ के लिए, तो एक चीज़ होना चाहिए, दे शुड नॉट बी कट फ्रॉम द रूट्स. ठीक है. तो वो रीफॉरेस्टेशन से फिर से वो फॉरेस्ट ग्रो हो सकेगा, right. And in India there are many you can say acts also which has been taking place for conservation of forest, है ना. कुछ ऐसे है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, चिपको आंदोलन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है. ऐसे सारे सब प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट वी कैन कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सो बोथ फ्लोरा एंड fauna. So hope students you all have understood this chapter very well. और also आप लोगों ने सोच लिया है कि आज से आप लोग कभी कोई ट्रीज़ नहीं काटेंगे. इनफैक्ट यू विल ग्रो मोर ट्रीज़, यू विल प्लांट ट्रीज़, राइट, टू कंजर्व अवर एनवायरनमेंट. हमारे आसपास का एरिया क्लीन रखने के लिए, पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए वी शुड फॉलो इट. ठीक है. थैंक यू.